लिख दीजिए। ग्रुप में लिखे आई एम इन देवांशु मलिक, कुशल कुशल सोनी गुप्ता, आई एम इन सोनी गुप्ता, सुरभि, एवरीबॉडी प्लीज। हाँ चलिए। तो ये जो क्वेश्चन है, वेदर इज दिस एसओपी, इफ द एसओपी एग्जिस्ट, वेदर ऑल द रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना ये। यस सर, हो रहा है। हो रहा है। जो मेरा बात नहीं मानता वो पछताता है, देखा ये चीज अपना ट्रैक रिकॉर्ड में। जो मेरा बात मान जाता है उसका बात हो जाता है, जो नहीं मानता पछताता वो वही आ जाता है। हम जवान काला है हम लोग का थोड़ा, जो बोलता है वही आ जाता है। What should the auditor do if the goods are bought without a purchase order? With the purchase as SOP, if the SOP exists, with the procedure DOA followed for procuring such goods, if the annual budget, monthly budget was considered when procuring such goods, whether multiple quotations are received for procuring such goods, whether the goods after procurement was inventorized or capitalized, volume of such goods which are procured without the PO. There are two different doc types of purchase. One is the RE for PO based purchase and another is KR for non-PO परचेज डायरेक्ट एफी। इसका क्या मतलब हो गया लास्ट वाला पॉइंट का, कौन बताएगा? कौन बताएगा? लास्ट दो पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? फटाफट पढ़िए ना, अर्शिता पढ़िए, 6 पॉइंट पढ़िए फटाफट। If SOP exists, whether all the procedure and DOA followed for procuring such goods, whether annual budget, monthly budget was considered in procuring such goods, whether multiple quotations were received for purchasing such goods, whether such goods after procurement was inventorized or capitalized, volume of such goods which were procured without PO. There are two different document type for purchases. One is RE for PO based purchases and another is KR for non-PO based direct FI entry. Get the list of such KR entries in FBLI 1N T code. There are two different doc types of purchase. One is RE for PO based purchase and for non-PO there is KR. देखिएगा क्या होता है RE and KR क्या होता है, एक बार चेक करके बताइएगा, ठीक है? अभी चेक करके बताइए क्या होता है, गूगल करिए जल्दी से, ठीक है? RE क्या होता है फॉर PO बेस्ड परचेज एंड KR क्या होता है नॉन PO बेस्ड परचेज, जल्दी देखिए बताइए। और क्या लिखा है कि whether such goods after procurement was inventorized or capitalized. आरई मतलब सर इनवॉइस ग्रॉस आ रहा है, इनवॉइस ग्रॉस ऑफ इनवॉइस। केआर मींस वेंडर इनवॉइस। एक तो हो गया एसओपी होना चाहिए, ठीक है? दूसरा एसओपी एग्जिस्ट है तो प्रोसीजर डीओए शुड बी फॉलोड, whether annual budget was considered when procuring such goods, whether multiple quotations were received, whether the goods after procurement was inventorized or capitalized, whether the goods after procurement was inventorized or capitalized हुआ था, वो इन्वेंटरी में कैपिटल मतलब कैपिटलाइज हुआ था, and volume of such goods repurchase invoice booking time। क्या होता है ये सर? आरई का मतलब है इनवॉइस, परचेज इनवॉइस का बुकिंग टाइम, कब बेसिकली इनवॉइस बुक हुआ। रीपरचेज बुकिंग टाइम, ठीक है? तो ये सब याद रखना पड़ेगा कि तुम्हारा पास पहले तो गुड्स अगर पीओ बिना आ रहा है तो पहले तो एसओपी होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट यू नीड टू हैव द एसओपी फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, बट दिस व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एसओपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि नहीं है, ठीक है? The second thing very important is if the SOP exists, then whether the procedure were followed for procuring such goods. Okay, पहले SOP है कि नहीं, SOC है तो DOA है कि नहीं है, whether this budget were considered when procuring such goods, whether annual or monthly budget is considered in procuring such goods,
whether the multiple quotations were received for procuring such goods, whether the multiple quotations was received for procuring such goods, whether such goods after the procurement was inventorized or capitalized, whether such goods after procurement was inventorized or capitalized. ठीक है, multiple quotations मिला and goods after the procurement, whether the goods after the procurement उसको क्या किया था, उसको कैपिटलाइज किया था कि नहीं किया था, मतलब the goods आया उसको कैपिटलाइज जा रहा है या P&L में डाला, ये बोलना चाह रहे हैं क्या? And volume of such goods which was procured without PO, volume of such goods was procured, कितना वॉल्यूम में था वो गुड्स जो प्रोक्योर हुआ विदाउट पीओ, ये भी बहुत जरूरी है। ये लास्ट वाला पॉइंट छोड़ देना, 5 पॉइंट ही बोल दिया तुमसे खुशी हो जाएगा वो सामने वाला। क्या क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? लास्ट वाला पॉइंट इतना डिफिकल्ट है, छोड़ देना। ऊपर वाला 4 पॉइंट याद होना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, ये आ गया ना, ये आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा अगर पूछ लिया तो। व्हाट आर द थिंग्स, एक तो ये भी याद कर लेना, ये भी तो एक पॉइंट ही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 कौन जल्दी से सारा पॉइंट बता पाएगा फटाफट? दिवांशु मलिक फटाफट बताइए, बहुत टाइम देते हैं Sir, whether the company is having any kind of SOPs or not, and if the SOPs are और द existing, whether परचेज the ऑफ गुड्स SOPs विदाउट पीओ, विदाउट द परचेज ऑफ गुड्स विदाउट पीओ। हाँ पूरा बोलिए। हाँ if the SOP exists, if the SOP exists, whether the SOPs and the DOA were followed or not, whether the multiple quotations were received, and next point, volume of the goods that were purchased without PO, and there were two types of document of purchases. One is RE, one is KR, and we need to list down all the KR entries. और क्या होगा, और कौन बताएगा? गोपालन फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। whether organization is what should the auditor do if the goods are bought without the PO? गोपालन सर एक और था, whether the goods were inventoriized or capitalized. गोपालन Inventoriized. गोपालन 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 कहाँ है? गोपालन नहीं है। श्रेया बुटानी आप बताइए सारा पॉइंट फटाफट। So whether the company has an SOP for goods bought without PO, whether if the SOP exists, whether the DOA and the procedures were followed, whether multiple quotations were obtained from the vendor, whether the annual and the monthly budget were considered for including such procurement, whether after such procurement the goods were inventorized or capitalized. There are two different types of docs, KR and RE. Then KR entry should be passed, and yes, sir. ठीक है, 6 ओके। was- व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद सिलेक्टिंग अ वेंडर? बोलिए श्रेया बुटानी, So व्हाट इज द risk रिस्क एसोसिएटेड associated विद सिलेक्टिंग अ वेंडर? हाँ so vendor may be a related party. And the vendor may be a related party. Vendor may be an unregistered party. Vendor may not uphold the correct ethical standards. Vendor may increase the price later. Vendor does not provide correct quantity and appropriate quality of goods. हाँ ऐसा ही है. Okay, what is the risk and invoicing process? So fake invoices, unauthorized invoices by the departmental head, where quantity and other details are not properly mentioned. GST rates not properly mentioned. In case of export, the exchange rate is not properly mentioned, and so there is no proper segregation of duty for the person making the invoice, setting up the credit limits. Right. And so duplicate invoicing is also possible. Right. Yes.
What is the P2P steps? P2P step purchase. So identify the needs. पलक गुप्ता बोलेंगे P2P steps. पलक गुप्ता Yes, P2P sir. steps. Sir, first of all, वीडियो material ऑन करिए requisition. अपना वीडियो ऑन and- करिए सर नेटवर्क इशू है एक्चुअली मेरा, फिर वीडियो ठीक है बोलिए कल आपका इंटरव्यू है तो क्या करोगे नेटवर्क इशू रहेगा तो क्या करोगे सर मैंने बात करी है, अभी पीजी में थोड़ा इशू चल रहा है सही करवाइए आपको बहुत सर। दिक्कत हो जाएगा आप कॉल रिजेक्ट आया हो था जाएगा मैम का इंटरव्यू अभी, तो उन्होंने वीडियो के लिए रिजेक्ट हो जाएगा यस सर, मजाक अभी नहीं कर रहे कॉल आप। भी आया था, एचआर का ही कॉल आया था। क्या बोला यस सर। क्या बोला यू सिलेक्टेड सर नॉन गिव उन्होंने पोस्टपोन किया एक्चुअली फर्स्ट वीक ऑफ नो सर, मतलब उन्होंने थोड़ा पोस्टपोन किया है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में, तो डेट मेंशन नहीं करी है अभी, ये लोग छुट्टी मना रहा होगा थोड़ा तो अभी उन्हीं का ही कॉल आया था जस्ट। ओके ठीक है वीडियो सही करिए आपका बहुत झमेला हो जाएगा जो ये इंटरनेट का इशू है ना लोग नहीं समझता है लोग रिजेक्ट कर देते हैं यस सीधे सर, ये लोगों को तो यस सर, बहाना आई एम चाहिए वर्किंग। हाँ ये लोगों को तो यस ऐसे ही बहाना चाहिए और आप लोग बहाना दे देगा कि क्यों लोगों को पता है चीटिंग करके आंसर दे देगा ना वीडियो ऑफ रहेगा तो या तो बोलेगा तुम फिजिकल आओ यस सर, फिजिकल यस सर, आई नो। आजकल तो फिजिकल बुलाने लग गया आजकल कोविड खत्म हो गया ना कम फिजिकली यस सर, कम Yes, फिजिकली sir. सीधे ही बोलेगा कम फिजिकली वीडियो ऑन नहीं हो रहा है फिजिकल आ जाओ बस चलिए तो आपको क्वेश्चन है P2P में स्टेप्स क्या Yes, होता है sir. फटाफट बताइए तो Sir, material requisition, हाँ and then request for quotation, and then हाँ vendor selection, purchase हाँ order, PO issue करना, and then good receipt, good receive करना, and invoice verification, and then payment to vendor. फिर से बोलिएगा एक बार धीरे धीरे क्या क्या चीज होगा P2P स्टेप्स में Purchase requisition to the purchase department, बाकी request जन for नोट्स बनाइए ना quotation, नोट्स बनाइए बाकी जन हाँ ठीक है vendor selection, ठीक है purchase order, issue हाँ purchase order, हाँ good receipts, good receipt, then good receipt, invoice verification and process, verify हाँ with the PO and the good receipt, and then गुड payment to the vendor. ठीक है गुड सोनी गुप्ता आप नोट्स बना रहा है ना हाँ सोनी गुप्ता हाँ भैया बना रहे हैं। हाँ सीरियसनेस चाहिए हाँ बोलिए पलक पलक तो इंटरनेट का इशू बहुत खराब होता है ये इंटरनेट के कारण लोग रिजेक्ट हो जाएगा इंटरनेट क्यों नहीं अच्छा रहता है इंसान का ठीक है वो तो मुश्किल है चलिए इंटरनेट सही कराइए इंटरनेट के कारण रिजेक्ट होगा ना तो बहुत दुख होगा सीधे रिजेक्ट कर देते हैं इंटरनेट के कारण तो इंटरनेट ठीक नहीं है तो विल गेट बैक टू यू ये सारा हो गया ना आप लोग को बढ़िया से प्रियंका जैन प्रियंका जैन रिक्स इन इनवॉइसिंग प्रोसेस क्या क्या है If the purchase made from related party without it may involve a personal benefit of other and risk involving. मैं 2 दिन से आपका देख रहा हूँ आप ऐसे बहुत कंसिस्टेंट है पर 2 दिन से आप थोड़ा सा आपका इधर उधर जा रहा है फोकस
नहीं सर, कल तो मैंने किया ही नहीं था। मैं बोल रहा हूँ तो फोकस आपका इधर उधर हो रहा है। ये बहुत डुबा देता है लोगों को। एनर्जी को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा तब जाके होगा। समझ रहे हैं ना, कंपटीशन टाइट है। सर मैं बाय द 31 सब कुछ हो जाएगा। आपने जितना एक्सेल शीट में करवाया है ना, उतना सब कुछ। एक्सेल सीट में भी, और हमको तो वो भी चाहिए, कंसिस्टेंसी, दोनों चीज चाहिए तब जाके होता है। हाँ। नहीं तो होगा नहीं, देखिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। और यू आर अ गुड स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई वांट यू टू बी सीरियस, ओके। मेनी आर नॉट सीरियस, तो मैं उसे फिर वो भी नहीं, माथा नहीं लगाता हूँ फिर, इफ दे आर नॉट सीरियस। इनफैक्ट आई एम नॉट इवन नाउ, वो रख लिए कि हम अब जो का पर्सनल डाउट भी सॉल्व नहीं करेगा, जो इफ यू नॉट दे सीरियस विथ मी। मेरे को ये चीज चाहिए एकदम। रिक्स इन इनवॉइसिंग प्रोसेस क्या होगा, कौन बताएगा? रिक्स इन इनवॉइसिंग प्रोसेस फटाफट, अनुज शाह। रिक्स इन इनवॉइसिंग प्रोसेस। Sir, fake invoice, unauthorized of billing, हाँ and GST का wrong booking, HSN code wrong booking, हाँ टर्म्स ऑफ जो टर्म्स होते हैं इनवॉइस के वो मेंशन नहीं किया गया। हाँ, नोट बनाते जाइए प्रियंका जन। हाँ गुड। और सर और याद नहीं आ रहा। याद करिए, इनकरेक्ट डिस्काउंट्स आर प्रोवाइडेड इन द इनवॉइस। ठीक है, सिरा बुटानिया बताइए सारा पॉइंट्स फटाफट। रिक्स इन इनवॉइसिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला है फेक इनवॉइसिंग, सेकंड हो हाँ। गया अनऑथराइज्ड इनवॉइस बाय डिपार्टमेंट हेड, थर्ड हो गया कि रेट एंड क्वांटिटी टैम्परिंग, फोर्थ हो गया जीएसटी डिटेल्स नॉट मेंशन्ड, एचएसएन कोड नॉट मेंशन्ड, फिफ्थ हो गया नो segregation of duties, the person making the invoice and the person setting up the credit limits. In case of sixth हो गया, in case of export invoice, the exchange rate is not properly mentioned and captured. And so seventh हो गया, the format of the invoice is not correct. The full details are not captured on the invoice. गुड, ओके। O2C डेफिशिएंसीज क्या क्या है? O2C में डेफिशिएंसीज क्या क्या होता है, फटाफट बताइएगा, क्या क्या होता है O2C में डेफिशिएंसीज? ऑर्डर टू So कैश। fake sales, देख के बताइएगा, ग्रुप में भी सेल्स डाला था हमने। क्वांटिटी, सेल्स also क्वांटिटी मोर देन manual processing, unauthorized sales, manual processing, ग्रुप में देखिए, ग्रुप में डाला था इसका। Sir, automated process, like integrated documentation should be there. Data paid or not, we should check. Follow up done or not. ठीक है, आप लोग का Whether it पॉइंट्स is लेता है, related ठीक है। party transaction or सिर्फ not. बतानी बताइए पॉइंट्स क्या क्या बताता है, एक एक कर लेगा फटाफट। हाँ बताइए, O2C में क्या क्या डेफिशिएंसी, सब क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डर टू कैश, ठीक है। fake or unauthorized sales, पहले फेक सेल्स, ठीक है, फेक सेल्स or unauthorized sales. और हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं ना, ट्रस्ट में कोई नहीं डालेगा इतना इतना। और हम अगर एफर्ट डाल रहे हैं और आप लोग नहीं डाल रहे हैं ना, तो आप लोग का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर वाला फिर देखता है नहीं डाल, ये एफर्ट नहीं डाल रहे, नहीं कराते, चलिए और मुश्किल में पड़ जाओगे आप लोग। आई एम टेलिंग यू दिस, और मुश्किल में पड़ जाओगे। अनऑथराइज सेल्स और सेल्स Manual क्वांटिटी मोर processing. देन पीओ। मेरे से जो टाइम पास करता है उसका टाइम पास हो जाता है, याद रखिएगा। हम बहुत खतरनाक आदमी है, टाइम पास मत करिएगा मेरे साथ। बोलिए, एक हो गया फेक सेल्स, एक हो गया अनऑथराइज सेल्स, ठीक है। और बताइए जल्दी जल्दी। Manual processing, मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ सेल्स, inefficiencies in database, inefficiency in database, Unauthorized sale commitment. अब इतना अच्छा पॉइंट डाला था ग्रुप में, आप लोग ग्रुप देखते ही नहीं है, भगवान जाने क्यों नहीं देखता है, भगवान जाने आप क्वांटिटी लोग मोर देन पीओ। कर ही नहीं दिखते ग्रुप में, भगवान जाने ग्रुप क्यों बनाए हैं, ग्रुप से निकाल देते हुए घर में, पढ़ के ही नहीं रखे कुछ भी।
कुछ ही नहीं पढ़े, भगवान जाने। भगवान जाने क्या ही कौन सा लेके क्या पढ़ते हैं, भगवान जाने। Sir, Why it is not human received? error we can remove by integrating the ग्रुप में डाला है, process, पेमेंट इज automate the नॉट रिसीव्ड, process. ये भगवान जाने क्या इतना इंपॉर्टेंट काम है इसका जीवन में, ये थोड़ा बहुत आंसर ही याद नहीं होता है आप लोग से। ठीक है, ये सब पूछ लेगा और वो लोग के सामने बता नहीं पाएंगे, और वो लोग फिर आपको विल गेट बैक टू यू, विल गेट बैक टू यू, और फिर गया। इन केस ऑफ डिले ऑफ पेमेंट, whether Follow-up should be there the provision of doubtful debts have been created or are not. made, follow up should be there, good। और क्या था, और बताइए फटाफट। Sir, The goods are unauthorized sold sale commitment like inappropriate credit limit. against the PO, PO मतलब परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया। एक बार जल्दी से देखिए, 2 सेकंड दे रहा है, 2 सेकंड में फिर पूछेगा आप लोग को फटाफट। ऑर्डर टू कैश में क्या क्या डेफिशिएंसीज है, पहले फेक सेल, अनऑथराइज्ड सेल, मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ सेल, इनएफिशिएंसीज इन डेटाबेस, इफ द पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड देन व्हाई इट इज नॉट रिसीव्ड, एंड वेदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इन केस ऑफ डिले ऑफ पेमेंट हो रहा है देन व्हाट प्रोविजन मेड, फॉलो अप शुड बी मेड देयर, फॉलो अप शुड बी देयर, एप्रोप्रिएट फॉलो अप शुड बी देयर ओवर द ईमेल, ओवर ईमेल, goods are sold against the PO, ये सब चीज है, ये सब डेफिशिएंसीज है कि ये सब में हो सकता है डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, पेमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और क्या पॉइंट्स हो सकता है और बताइए। तो O2C में और क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकता है। Sir, बोलते नहीं हो unauthorized हेल्थी sale केस फ्लो, commitment. हाँ, Unauthorized sale commitment, sir. हेल्थी Sir, केस no फ्लो, change order was made. एक ही पॉइंट है ये वाला, एक ही चीज हो गया, वो एक ही ऊपर वाला एक ही है। और एक और हो सकता है No डेटा change रेटिंग order was made. सर आपने ही बोला हेल्थी कैश फ्लो, हेल्दी कैश फ्लो उसमें एफिशिएंट ओटीसी साइकिल होगा तो लेस टाइम रहेगा। यहाँ पर मैं लिखाया था तो फिर से क्यों लिखा रहे हैं हम भी, लिखाया था ना, याद ही नहीं आया। कौन बोला, ये देखिए ये सब पॉइंट था, 13 पॉइंट लिखवाए थे आपने। कौन बोल रहा है आंसर, प्रियंका, प्रियंका ना, हाँ ठीक है। ये वाला O2C में यहाँ पर में और भी पॉइंट्स है, एक जगह कर देगा इसको कॉपी करके, ठीक है। तो ये दे ही नहीं सकता पार्टी दे, हाँ हम 4 साल बाद PG छोड़ रहे, सब पार्टी चाहिए सबको। Payment to the debtor can be delayed. Unauthorized sale commitment. Sale must be authorized by this. Unauthorized terms of credit. Credit terms must be mentioned in the PO and must be approved by the vertical head. Fake sale. Sales quantity more than the PO. Manual process lead to delay in sending goods through this, sending inefficient database and not proper integration. Good. ठीक है, कौन बताएगा फटाफट। P2 O2C deficiencies. सोनी गुप्ता है, भाग गई। दीपक मंत्री, हाँ जी दीपक मंत्री, दीपक मंत्री। O2C order to cash deficiency is like the fake sales quantity more than the PO, और इजी है, दिमाग लगाइए एकदम सारा पॉइंट याद हो जाएगा एकदम। ऑर्डर टू कैश में बहुत इजी है पॉइंट सब, लॉजिक payment से। to debtor हाँ। payment to debtor may be delayed, और ठीक है, आप 3-4 पॉइंट बोलते हैं। फजल मोहम्मद, फजल मोहम्मद, ऑर्डर टू Yes, कैश sir. डेफिशिएंसीज, यस। Your friend only cleared internal audit account only. Take from him also. Sir. Yeah, order to cash deficiencies. What are the points? Fake sales, unauthorized sales, database inefficiency. I like the wallpaper. Very good wallpaper. ऐसे बनाइए, अच्छा लग रहा है।
Okay, O2C deficiencies, yes. Yeah, unauthorized sales commitment, Right. database inefficiency, um, if the payments are not received, then why it's not received? Then why it's not received? What is the risk in the invoicing process? Risk in the invoicing process, GST rate and amount not mentioned, fake invoice, and tampering the invoice with quantity or amount, lack of SOD between. What should the auditor do if the goods are bought without PO? What should the auditor do if the goods are bought without the PO, purchase Without order? PO, then okay, then first of all, the check whether there is any SOP is there. Mm-hmm. Then whether they're considered budgets annually, quarterly budgets. Then आज ये हमको सीट कंप्लीट चाहिए आप लोग का एंड से आई एम गिविंग दिस सीट आज ही हमको कंप्लीट चाहिएगा आई नीड ऑल दिस थिंग्स टू बी डन टुडे राइट tomorrow if I ask again not I need everybody to complete this very nicely okay because हमने एक जगह इतना अच्छा से ब्यूटीफुल तरीका से आप लोग को करवा दिया ठीक है this seat I need and your more seats are there you will complete all these seats you're seeing na order to cash deficiencies I need this to be done very important okay now what is the P2P deficiencies what are the P2P deficiencies सिरिया पुटानी बताइए P2P deficiencies क्या क्या होता है The purchase order may be made at the request of any user. Purchase order may be unauthorized. New vendor creation can be made by anyone. Blanket PO and open PO. Blanket PO क्या होता है So blanket PO which is made at one time with related parties से करके and there should be a contingent agreement. So अच्छा if से नहीं any हुआ श्रेया terms पुटानी आपका अच्छा से करना पड़ेगा बहुत सारा पॉइंट्स है और आपको क्योंकि जब आप आंसर दे रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो वहां पर तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट नहीं होगा हम आपको बता रहे हैं ना yes sir. समझ रहे हैं ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग एकदम सीरियस होना पड़ेगा दे विल रिजेक्ट यू विल फील बैड अबाउट इट ऐसी अपॉर्चुनिटीज कम है प्रोक्योर टू पे व्हाट आर द थिंग्स इन प्रोक्योर टू पे व्हाट आर द स्टेप्स बताइए श्रेया पुटानी So identify the needs. फिर create requisition. फिर create purchase order. Approval of purchase order. फिर vendor selection. फिर उसके बाद vendor selection. फिर goods receipt. फिर goods receipt के बाद ऐसा invoicing and then payment. 3-way match Yes sir. 3-way match So 3-way matches PR, PO and GRN. No sir, purchase order, invoice and GRN. hire to retire discrepancies So attendance register not maintained properly. Casual workers hired and so ये और देखना पड़ेगा. very bad IFC testing what do you mean by So IFC ये भी testing मुझे
सर ये अभी मुझे रिवाइज करना है सर, इंटरनल ऑडिट का, मैं तो आपको बोला थी। Okay, what are the things are there in internal audit? Two things that you need to check in internal audit. So I have to revise this. क्या होगा? ठीक है, नहीं क्या क्या रिवाइज किया आपने? सर अभी तो मेरे को करना है रिवाइज। स्टार्ट ऑडिट में भी सिर्फ इंड एस रिवाइज कर रहे हैं और असर्शन मटीरियलिटी रिवाइज किया है। बाकी अभी से मुझे ऑडिट ऑफ असेट्स और वो सब भी करना है रिवाइज। तो क्या क्या हो गया, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में ऑडिट में क्या क्या प्रोसीजर्स होगा? तो वो करना है, वही तो बोल रही हूँ, एरियाज का ऑडिट अभी मुझे करना है रिवाइज। तो क्या हो चुका है? असर्शन मटीरियलिटी ठीक है, और मेरा एक इंड बात एस। समझने का कोशिश करिए आप लोग का। आप लोग अभी ना ऐसा सिचुएशन में नहीं है कि एक आंसर को आप 3-3 बार रिवाइज करेगा। सीए फाइनल का एग्जाम नहीं चल रहा है। आप लोग जब पढ़ रहे हैं ना तभी आपको याद होना पड़ेगा वो आंसर एग्जाम का। इंटरव्यू शेड्यूल नहीं बोलेगा नहीं नहीं तुम 5 दिन बाद इंटरव्यू ले लो मेरा। आप लोग चीज को समझ रहे नहीं। आप लोग जब पढ़ रहे हो ना तब रिवाइज नहीं कर सकते हो बार बार। आपको एक ही बार में उसको समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ सीए फाइनल एग्जाम। आई एम टेलिंग टू ईच एंड एवरी वन द सेम थिंग। जब पढ़ रहे हो तभी आपको एक मेक श्योर करना है, आपको 6 महीने तक याद रहे। गजनी बनने से नहीं होगा कि 15 मिनट में आंसर भूल गए आप लोग। इट इज नॉट पॉसिबल। यू आर नॉट इन द बैंडविड्थ। आप लोग को रटना नहीं आता इसका मतलब। तो रटने वाला देवी बन जाए, देवा बन जाए, जो भी है आप लोगों पर एक बार में याद करना पड़ेगा। आप लोग मतलब ऐसे नहीं कर सकते, मतलब हो गया फिर 15 मिनट बाद फिर से देखा फिर 20 मिनट बाद ऐसे करने से नहीं होगा। चीज को समझिए, हम सबको बोल रहे हैं ये चीज। आप लोग गलत तरीका से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ऐसे याद करना है कि 6 महीने तक याद रहे। आप लोग बार बार चीज को क्यों याद करने का कोशिश कर। अपना फोन नंबर आपको याद रिवाइज करना पड़ता है क्या? आपको एड्रेस अपना रिवाइज करना पड़ता है? अपना पैन कार्ड आपको रिवाइज करना पड़ता है? नहीं। पर आपको आंसर रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि आप लोग सीरियसली पढ़ते ही नहीं है उसको। आप लोग मेन मन को बोल के रखा कि हमको 3 बार उसको आंसर को याद करना पड़ेगा। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। आप लोग सीरियसली नहीं पढ़ रहे चीज को। आपने क्या क्या पढ़ लिया हमको बताइए। रिवाइज नहीं कर सकते यहाँ पर मैं। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिविजन इन इंटरव्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिविजन। जब पढ़ लिया आपको मेक श्योर करना है कि आपको दूसरा बार उसको नहीं, आपको याद रखना है 6 महीने तक वो चीज को। प्लीज जिसको एकदम सीरियसली लीजिए। पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि इसको खत्म करिए। बेटे स्लो लर्नर हो पर खत्म करना है इसको। समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि द Yes. प्रॉब्लम इज दैट यू आर स्टिल अटेंटिव एंड पीपल आर नॉट अटेंडिंग द सेशन आल्सो एंड दे आर अपने घर में भी कुछ नहीं करके निहाल करेगा। तो और प्रॉब्लम है ना। अब आप रिवीजन थोड़ी ना करते रहेगा। और आपने जब आंसर बोलेगा रट रट के अगर आंसर बोलेगा उधर में तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा आपको। सोच के देखिए ना खुद ही। तो रट क्या है? समझ रहे हो ना मेरे बात को? ध्यान से वही मैं बोलना चाह रहा हूँ सबको। तो अभी आपने क्या पढ़ लिया हमको बताइए। सर मैं आपको कल तक पूरा करके दे दूंगी सर। कल तक नहीं, अभी तक आपने क्या पढ़ा है हमको? एक बार भी पढ़ा? क्या पढ़ा है वो? सर इंड एस पढ़े हैं और असर्शन इंडेक्स में क्या मटीरियलिटी पढ़ा? पढ़ा है। ठीक है, इंड व्हाई डू एस वी 115। कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी? व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी? So as to reduce the overall risk to an appropriately low level. So performance materiality is calculated as a percentage of the total materiality. It is also called tolerable error. If we try not to so that the overall materiality is not breached, we calculate performance materiality. It is 50 to 75% of the overall materiality. What are the audit procedures we will perform while doing audit of fixed assets? So fixed assets, we'll check whether we'll check the existence of fixed assets as on the balance sheet date. We will check the sale deeds. Where in case of fixed assets that have been, we will check in case of immovable property. We will check the sale deeds. आगे We will बोलिए। check the depreciation. We will check whether the depreciation has been charged properly or not. Whether बोलते रहिए, we will check. बोलते रहिए, आप रुकिए मत, आप बोलते रहिए आंसर को। हाँ, आप कंफर्म मेरे से मत करिए, आप बोलते रहिए आंसर को। हाँ बोलिए, सही बोल रहे, बोलती। We will check whether proper maintenance of a fixed asset is being done or not. And so we will check. Yes, sir. इन्वेंट्री में क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होगा?
सर नहीं पता। ट्रेड रिसीवेबल में सर नहीं किया ना, फिक्स्ड असेट्स का बोलते रही हूँ। क्या किया आपने और इसके अलावा? इंडेस पढ़ा, ठीक है। इंडेस 115 और AS9 में क्या डिफरेंस है? सर इंडेस 115 और AS9 में स्कोप का डिफरेंस है। सर रिस्क एंड कंट्रोल, सब इंडेस 119 में कंट्रोल ट्रांसफर पे होता है और उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड पे होता है। सर उसमें मल्टीपल आइटम्स इन अ PO का रिकॉग्निशन होता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सर देन 115 में वेरिएबल कंसिडरेशन का गाइडेंस दिया है, उसमें नहीं दिया है। इसमें सर देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया है, उसमें नहीं किया है। टेबल कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं इंडेस 115 के हिसाब से? So variable consideration means discount and two methods होते हैं, so most likely outcome method and expected method. What is Incoterm? So Incoterms are terms between the buyer and the seller, like who will charge the custom duty and pay the taxes. It is defined by ICICI, the बाकी नोट्स International बनाइए, Chamber of Commerce. नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चंस है वो प्लीज वो रहेगा, स्ट्राइक रहेगा, ये करना है हमको। नोट्स बनाइए। अनुज बना रहा है खाली नोट्स। आप लोग बना रहे हैं ना? दीपांशु मलिक, दीपक, आप तो नोट्स नहीं बना रहे हैं। दीपक आप तो देख रहे हैं मेरे को। नोट्स बने हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं सर, बना रहे नोट्स। बना रहे हैं ना? तब ठीक है। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बोल दी। बिनको टर्म्स क्या होता है? So श्रेया Incoterms बुटानी आप कोई कुछ? are हाँ so Incoterms are terms that are defined by the ICC, International Chamber of Commerce. These are terms एग्जाम्पल, between the buyer and the seller. एग्जाम्पल, हाँ जी सर। एग्जाम्पल। Examples are CIF, X Works and FOB. ठीक है। CIF में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा? CIF में revenue will be recognized. CIF will be recognized when the goods are transferred to the buyer on the date when they are sent shipped to the buyer. FOB में sir until the place they are shipped, and X Works में होता है when they are out of the factory. What is identifiable asset as per India's lease? So identifiable as per India's 116, an identifiable asset is an asset which is either explicitly or implicitly mentioned in a contract. Explicitly mentioned, implicitly means mentioned as per the terms of contract. And the other thing is an identified asset. There are two things: whether whether the supplier has substantive substitutive rights over the asset. If the supplier has substantive substitution rights, then it is not a lease. Then it is not an identifiable asset. आप लोग एक चीज इंश्योर करिए, 2-3 चीज। हाँ, एक बार याद हो गया ना, 6 महीना तक आपको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। डू और डाई सिचुएशन है। एक बार याद करिए, 6 महीना तक नहीं भूलना है। पर याद ऐसे करना है कि हमको रिवाइज करने का, रिवाइज नहीं होने वाला है। ये कोई एग्जाम नहीं कि रिवाइज आप लोग को एग्जाम से पहले रिवाइज करने का मौका मिलेगा। अचानक से वो आपका कॉल आ जाएगा, हे देयर इज अ कॉल शेड्यूल टुमारो 24 आवर्स में, तो क्या रिवाइज करेगा? रिवाइज करने का कोई टाइम नहीं मिलता है। समझ में आया? तो आंसर को ऐसे याद करिए, नोट्स बना बना के, कि एक ही बार में याद हो जाए। रिविजन का टाइम नहीं मिलेगा आपको, याद रखिएगा। पहला चीज। दूसरा चीज, 50 क्वेश्चन खाइए डेली का। 20 से 50 क्वेश्चन खाना है। खाना मत खाइए, क्वेश्चंस खाइए।